welcome to you on day 6, first session by Dr. Nihal Ranjan Roy sir. It's on introduction to quantum computing. So Dr. Nihal Ranjan Roy sir is a passionate teacher working as an associate professor in Department of Computer Science and Engineering, School of Engineering and Technology at Sharda University, Greater Noida. Dr. Roy is an active member of Center of Cyber Security and Cryptography at Sharda University. He holds a doctorate and MTech degree in Information Technology from Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, and Bachelor Engineering degree from Biju Patnaik University of Technology, Rourkela, Odisha, formerly known as Utkal University, Orissa. He has around 19 years of teaching experience in reputed colleges and universities of Delhi NCR. He has authored and co-authored several research papers in reputed journals and international conferences, and is a reviewer of many SCI Index journals, IEEE journals, Wiley, Elsevier, and Springer, to name a few. He has chaired several technical sessions and has reviewed papers of many international conferences from Springer and IEEE. Dr. Roy's research areas include computer network, cyber security and forensics, and machine learning. He has published 4 patents to his credit. Dr. Roy is an IBM certified teacher for 16 courses, some of which are open source software, open source standard, web programming through PHP and HTML, open source mobile platform, Android programming, administering open source systems, Linux, business intelligence, data mining and predictive modeling, multidimensional modeling, applied statistical analysis, social, mobile and web analytics, big data and Hadoop, Linux network administration, etc., to name a few. Dr. Roy has offered training programs on Python to school kids, undergraduate students and corporate clients too. Some of the honors and awards to his credit are Best Teacher Award, Best Researcher Award, Best Teaching Website Design Award and Best Personality Award. I thank you, sir, for coming over here. Now the session is sirs. Thank you. Okay, good morning everyone, and thank you Nusrat ma'am for the nice introduction. Since this FDP is on quantum and machine learning has become relatively old, and many of you know. These days I work in Python, machine learning and deep learning, and as I belong to Center for Cybersecurity and Cryptology, so I do have a team of my colleagues over there who works in quantum computing. Quantum is such a field where I will show you the names where people from electronics, mathematics and computer science they work and how they have contributed. So I have named this title Unveiling the Quantum Frontiers. Many people describe quantum computing in their own way, like people describe the story of an elephant. The person who has seen the leg of an elephant, then they tell that elephant is like a trunk of a tree. Someone who has seen the tail of an elephant, it's like a snake, and like way. So in my perspective, the best way to describe a race is to hear the story from the horse's mouth.
So let us see what is quantum computing, a brief introduction of 7 to 8 minutes from one of the living legends and the author of the book called Quantum Supremacy. One second, let me... Let me quickly get my screen. One second. Let me play it offline. I will ask questions at the end of this session. So, इसका वॉल्यूम नहीं आ रहा है यहाँ से. इसमें तो वॉल्यूम होगा ना? इसका वॉल्यूम ऑफ है क्या? Let me play it from my laptop then. Is it audible? Well, the arrival of we all know that digital computers changed virtually every aspect of our life. Well, the arrival of quantum computers could be even more historic than that. We're now at the initial stages of the next revolution. We're talking about a new generation of computers, the ultimate computer, a computer that computes on atoms, the ultimate constituents of matter itself. The question is, who's involved in this race to perfect quantum computers? And the answer is everyone. All the big players are part of this race because if they're not, Silicon Valley could become the next Rust Belt. Also, anyone who's interested in security is interested in quantum computers. They can crack almost any code that is based on digital technology. That's why the FBI, the CIA, and all national governments are following this very closely. Quantum computers will change everything. The economy, how we solve problems, the way we interact with the universe. You name it, quantum computers will be there. I'm Dr. Michio Kaku, professor of theoretical physics at the City University of New York, and author of Quantum Supremacy, about the rise of quantum computers. You see, computers have gone through three basic stages. Stage one was the analog computer. So 2,000 years ago, there was a shipwreck. And in the boat that sank was a device, and when you brushed away the dirt and debris, you began to realize that it was a machine of incredible complexity. It was in fact the world's first analog computer, and it was designed to map the motion of the moon, the sun, and the planets to simulate the universe. Now, do you agree with him that it was the first analog computer? What is a computer? What is the definition of computer? And why he is calling this device a computer? One of the very first definitions of computer says that computer is an electromechanical device. Now, what is mechanical in this? Because earlier computers, the computers which we call as a computer, they were made up of wheels.
and gears and levers, and they were as big as this room. So computer is not what we call it today, right? It has a long history, the evolution history. If I show you a photo of a human being living in a cave and I say that this is a human being, you can't say, no, a human is something who wears a jeans and a t-shirt and that person and a watch, that person is a human being. This is the modern version of it. And you see how the evolution has gone and how people have inspired or learned from the previous things, right? So that evolution history has to be known to you so that you take this point thoroughly. But as we primitive peoples became more prosperous, we had to count things. Count how many cows you had. Count how much profit you made. Analog computers could be based on sticks, bones, whatever it took to count. So this went on for thousands of years until finally we reached the work of Charles Babbage. He creates the ultimate analog computer with hundreds of gears and levers and pulleys, and by turning the crank, you could then calculate longitude, latitude, you could calculate interest rates. It was very valuable to have an instrument like that for the banking industry, for commerce. Then World War II comes along. Babbage's machine is simply too primitive to break the German code, so the job was given to mathematicians like Alan Turing. Alan Turing was the one who codified a lot of the laws of computation into what is called a Turing machine. And of course, it's digital. Now, the digital revolution is based on transistors. It operates on zeros and ones, at the speed of electricity. Every digital computer is a Turing machine. The next step beyond digital computers is the quantum era. Richard Feynman was one of the founders of quantum electrodynamics, but also a visionary. And he asked himself a simple... Quantum starts from here. Quantum starts from here, almost 100 years. Right, इससे पहले quantum physics के कुछ चीजें थे, but there are certain principles जो कि explained ही नहीं थे, and we will come to it slowly. Question: how small can you make a transistor? And he realized that the ultimate transistor is an atom. One atom that could control the flow of electricity, not just on or off, but everything in between. We have to go to quantum computers. 1 minute. What is a transistor and what do you feel? What is its significance in modern computers? Transistors के बारे में पता है? It operates, controls the flow of current in an electric circuit. Yes. The basic flow is controlled by this transistor. अगर वो नहीं हो तो सिर्फ हमारा कंप्यूटर ही नहीं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होंगे. ठीक है. और उसके बाद मूर्स लॉ था कि ट्रांजिस्टर्स भी पहले बड़े होते थे, कितने छोटे छोटे हो गए, बट उसके छोटे होने पे भी एक लिमिट है. मिनिचराइजेशन. किसी भी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, द चैलेंज इज टू मिनिचराइज इट. पहला मोबाइल फ़ोन आपने देखा था इतना बड़ा होता था, अब मोबाइल फ़ोन छोटे छोटे हो गए. उस मोबाइल फ़ोन्स में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते गए, स्पेस उतना ही है बट उसमें और चीज़ डालते गए. सो मिनिचराइजेशन इज सच अ बिग थिंग. नाउ ही हैज कंपेयर्ड एटम विद अ ट्रांजिस्टर. नाउ व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम? आँख से तो दिखेगा भी नहीं. तो अगर कुछ ट्रांजिस्टर्स एटम के साइज के हैं और उसको मैं बना दूं, उसका सेंसर्स बना दूं और आपके अगल बगल में चीज़ें डाल दूं, आपके पॉकेट में ही कुछ डाल दूं, आपके पास ही रख दूं मैं, जस्ट टू सी हाउ द वर्ल्ड विल चेंज. आपको पता नहीं है आप किस तरह से मॉनिटर हो रहे हो. और उतनी अगर कैपेबिलिटीज उतनी छोटी चीज़ में आ जाए तो कितने कम साइज में और क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं. It is a way of, I believe, understanding the nature and decoding them. 0 and 1 तो computing में हमने बनाया है, but the ultimate computing starts here. The main calculations starts here. We are into that path. आप सोचो कि atomic level पे आ जाए हर चीज़ तो क्या होगा? It's a very fascinating world. Computers that compute on atoms rather than on transistors. Transistors are based on zeros and ones.
reality is not. Reality is based on electrons and particles. And these particles in turn act like waves. So you have to have a new set of mathematics to discuss the waves that make up a molecule. And that's where quantum computers come in. They're based on electrons. And these electrons, how come they have so much computational power? Because they can be in two places at the same time. That's what gives quantum computers their power. They compute. What do you mean by two places at the same time? ऐसा कैसे possible है? ये बोल रहे हैं कि at a time two places में हो सकते हैं. मैं at a time यहाँ भी हो सकता हूँ, दिल्ली में हो सकता हूँ, ऐसा possible है क्या? बट कई बार आप अपने जो भी रिलीजियस बुक्स फॉलो करते होंगे वहाँ पे इंस्टेंसेस आपको मिले होंगे. जो भी आपके वर्शिपर्स थे कहीं ना कहीं आप कहीं किसी ने भक्त ने पुकारा तो कहीं और है, साथ में कहीं और है और एक साथ कई जगह पे हैं. शायद क्या ऐसा पॉसिबल है? वो मिथ था या हम कहीं पैसे एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम कुछ डिकोड कर लें? वी विल सी वेरी सून. On not just one universe, but an infinite number of parallel universes. What is parallel universe? What is parallel universe? Anyone has any idea about parallel universe? DC की कॉमिक्स किसी ने देखी है? द फ्लैश किसी ने नहीं देखी? मार्वल्स में पैरेलल यूनिवर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज में आया होगा मल्टीवर्स में, आपने देखा है? वैसा ही डीसी में फ्लैश जिसको नहीं पता है कि कैरेक्टर है जिस पे एक बार बिजली गिरती है और बहुत तेजी से वो दौड़ता है. मतलब वो लाइटनिंग स्पीड से भी तेज अपना दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते टाइम स्पेस चेन में वो दूसरी दुनिया में चला सकता है, पीछे चला जा सकता है और पीछे जाकर के वो कुछ भी ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि टाइमलाइन चेंज हो जाता है. ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल कॉन्सेप्ट्स. अब पता नहीं है आप लोग एग्री करोगे कि नहीं करोगे. हिंदू ग्रंथों में एक जिक्र होता है काक मुसंडी का. तो उन्होंने कहा कि मैंने रामायण को सैकड़ों बार देखा है लिखने से पहले. आप खोजना इसको गूगल पे कहीं पे. तो भाई तुम रामायण को एक इवेंट को सैकड़ों बार कैसे देख सकते हो? तो क्या हम उसको कर सकते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स है या कहीं ये पैरेलल यूनिवर्स की तरफ तो इशारा नहीं करता? जस्ट एक्सप्लोर, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑन गूगल अबाउट इट. और आजकल मूवीज भी जो हैं पिछले 10-20 साल से दे टॉक अबाउट पैरेलल यूनिवर्स. तो क्या क्वांटम भी हमें पैरेलल यूनिवर्स में लेके जाएगा? क्या पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जो विंडो है क्वांटम खोलेगा? ऐसा कुछ है या अभी तक मिथ ही है? जैसे हम कभी सोचते थे कि हम उड़ पाएंगे. अरे कैसे उड़ पाएंगे? इंसान कोई पंख थोड़ी ही उड़ पाएगा. मिथ लगता था. दुनिया के कोने में जाएंगे तो गिर जाएंगे, एंड ऑफ द वर्ल्ड, मिथ लगता था. बट साइंस इज दैट लाइट विच At the fundamental level, quantum mechanics can be reduced down to a cat. Schrodinger's cat. I will talk about this again. Let's take a box. In the box, you put a cat. And the question is the cat dead or alive? Well, until you open the box, you don't know. It is alive and dead simultaneously. It's in a superposition of two states. In other words, the universe has split in half. In one half, the cat is alive. In the other universe, the cat is dead. That's the basis of the quantum theory. That until you make a measurement, the cat can exist in both states simultaneously. In fact, in any number of states simultaneously. The cat could be dead, alive, playing, jumping, sideways, sick, any number of states. Now, why am I mentioning this? Because this summarizes the power of quantum computers. Quantum computers compute on parallel universes. That's why they are so powerful. One more thing, ये जो भी वीडियोस क्वांटम कंप्यूटर्स का दिखा रहा है, आप देख रहे हो कहाँ पे रखा हुआ है? वो किस चीज़ का बना हुआ है? उसमें जो पाइप्स हैं वो पाइप्स क्यों हैं? उसमें तार क्यों नहीं है ट्रेडिशनली? ये बहुत सारी चीजें इसके साथ एसोसिएट है. सो बी अ गुड ऑब्जर्वर एंड यू विल गेट आंसर्स टू दिस आल्सो. So how much faster is a quantum computer over a digital computer? In principle, infinitely faster.
When we talk about digital computers, we can measure their power in terms of bits. For example, spin up, spin down, zeros and one, would constitute 1 bit. For a large digital computer, we're now talking about billions of bits that are modeled by transistors. Except now quantum computers talk not just about spin up or spin down, but everything in between. That's called a qubit. 1 qubit represents all the possibilities of an object spinning between up and down. अब ये बताओ, जीरो को माना हमने मान लें कि 1 जीरो अप स्पिन है हमारा, कौन दिए इलेक्ट्रॉन तो 1 है, जीरो है, नीचे किए तो 1 है. नाउ in between, what are the other possibilities, that how many places it could be? 2 places. In between 0 and 1, how many places are possible? Infinite. Infinite. It depends upon the precision at which you measure. और इलेक्ट्रॉन का साइज ही देखो 9 × 10⁻⁹ और इस लेवल पे है, तो कितनी पॉसिबिलिटी सिर्फ 0 और 1 के बीच में है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दे रहा है. तो इस अच्छा देखो, अब इतने छोटी चीजें हैं, तो इतनी छोटी चीजों को मेजर कैसे करेंगे एग्जैक्टली? स्पिन को टेप, इंची या प्रोजेक्टर लेकर के प्रोटेक्टर हम मेजर करते हैं, फिर एंगल्स, तो ऐसा वहाँ पे पॉसिबल हो पाएगा क्या? हमारे पास ऐसी डिवाइसेस बन गई है जो एक्यूरेसी के साथ वहाँ पे करें. अगर एक्यूरेटली आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा भी एरर है, देन दैट एयर क्यूमुलेट्स, मल्टीप्लाइज, और फाइनली रिजल्ट भी हमारा डेविएट होगा. ठीक है, सो दीज आर अगेन चैलेंजेस. क्वांटम कंप्यूटिंग बनाना इतना आसान नहीं है कंप्यूटर्स. Let us see further. Thousands of qubits can now be modeled with the latest generation of quantum computers. Eventually, we अब देखो, अब हमारे कंप्यूटर की स्पीड्स या क्वालिटी कैसे आप मेजर करते हो? So how do you measure that a computer is good or fast? How do you measure it? Processor speed. And what are the RAM. things which specify the processor? Clock Clock speed. And what are the part of a processor internally? What all a processor has? Okay. And RAM or processor. RAM. RAM is not part of the processor. And cache memory. And रजिस्टर्स भी होता है कुछ. रजिस्टर्स क्या होता है? पर्पस क्या है इसका? नहीं, रजिस्टर मेमोरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं. स्टोरेज. ओके. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटा पाथ और वर्ड लेंथ? कभी सुना है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? What is the difference between Windows 2000 and Windows 10? What is difference between the previous one, the Windows 8 and Windows 10? Lots of difference. कभी सुना है 32-bit 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम? Yes. ये क्या होता है? क्या होता है? एट ए टाइम कितने डेटा बिट्स को प्रोसेस कर सकता है? एक साथ 32 बिट के उसको वैल्यूज भेज सकते हो, और 32 बिट को डील कर सकता है. एक साथ 64 बिट को भेज सकते हो तो 64 बिट को डील कर सकता है. डिफरेंस ऑफ 32 बिट्स. 32 बिट्स डिफरेंस मीन्स 2 to the power 32 इन बाइनरी, जस्ट टू सी हाउ बिग नंबर दिस इज. ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया 8 बिट से. 16 बिट अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डॉस थे वो 16 बिट थे. तो अगर आप देखो आजकल टर्बो सी में अगर आप काम करो तो डॉस बॉक्स डालते हो. Then 32 bit, then 64 bits, right? So this bit size also increases. अगर आप क्रिप्टोग्राफी की बात करते हो एल्गोरिथम्स की, तो 128 बिट की, 256 बिट की, 512 बिट की, 1024 बिट की, 2058 बिट की, क्योंकि अगर कम बिट का है तो क्रैक कर देंगे. कंप्यूटेशनल पॉसिबल है इसको ब्रूट फोर्स अटैक से तोड़ना. तो एक क्वांटम बिट की तो हम बात कर रहे हैं, क्या इसी तरह क्वांटम बिट को भी बढ़ा करके नहीं कर सकते तुरंत? उसमें भी और पावर आ जाएगा.
राइट, बट ये क्या बोल रहा है? पॉसिबल नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है। देखो फिर से, this wise gentleman, what he is saying, you will have to be very challenging. So how much faster is a quantum computer over a digital computer? In principle, infinitely faster. When we talk about digital computers, we can measure their power in terms of bits. For example, spin up, spin down, zeros and one, would constitute 1 bit. For a large digital computer, we're now talking about billions of bits that are modeled by transistors. Except now quantum computers talk not just about spin up or spin down, but everything in between. That's called a qubit. 1 qubit represents all the possibilities of an object spinning between up and down. Thousands of qubits can now be modeled with the latest generation of quantum computers. Eventually, we hope to hit 1 million. And so we're talking about exceeding the power of ordinary digital computers. That's called quantum supremacy. It is the point at which a quantum computer can outrace and outperform a digital computer on a certain task. We passed that several years ago. But we want a machine that can exceed the power of any digital computer. We're not there yet, but we're very close to it. The number one problem facing quantum computers is the question of decoherence. Okay, Everything we'll stop here. So what do you see from this video? Anybody who can conclude? Anyone who can conclude? So poor. बोलना आना चाहिए। कितनी भी काबिलियत है आप में, आपको नहीं पता चलेगा अगर आप बोलोगे नहीं तो। इसमें ये बताया जा रहा है जनरल कंप्यूटर में हम लोग 0-1 यूज़ करते हैं इंडिविजुअल का, लेकिन इसमें हम लोग 0-1 को यूज़ करते हैं, लेकिन उसको एक पेयर में करते हैं 0-1 जिसको क्यूबिट्स इसमें एक टॉपिक ये बताया गया। उसके बाद वो 0-1 के बीच में कितने पेयर इंटरैक्ट करते हैं। कभी भी हम किसी चीज़ को जब व्याख्या करते हैं ना तो पहले बिगर पिक्चर देते हैं। तो देखते हैं ना कैमरा करते हैं पहले फुल, देन जूम 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 नैरो डाउन। सो द बिगर पिक्चर इज दैट द न्यू टेक्नोलॉजी क्वांटम इज गोइंग टू डोमिनेट एंड यू सी ऑलरेडी द बिग रैट्स आर इनटू द रेस। गूगल आपने देखा, माइक्रोसॉफ्ट देखा, सारे के सारे लगा रहे हैं, कंप्यूटर से बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा तो आपका हर चीज़ कोड टूट जाएगा। मतलब ऐसा कोई दरवाजा ही नहीं जिसमें ताला है, आप ये सोच लीजिए। कोई आपकी बैंकिंग सिस्टम कहीं कुछ कोई क्रिप्टोग्राफी काम ही नहीं करेगा। आप सोचो कि मेरे पास आ गया आज के डेट में, आज अमेरिका का ही सारा मैं अगर हैक कर दूँ तो अगर उनके बैंकिंग सिस्टम्स को अगर ये कर दूँ, उनके एयरलाइन सिस्टम्स को थोड़ी देर के लिए अगर कर दिया जाए तो आप समझ रहे हो क्या है, कितनों का लॉस होगा। सिर्फ उनका लॉस नहीं होगा, बाकी डिपेंडेंट जितनी करेंसी इकोनॉमिक्स है उस पर लॉस हो जाएगा। आप सुबह उठते तो आप देखते हो कि वहाँ का स्टॉक का मार्केट क्या प्राइस है, अप हो रहा है तो उसका इफेक्ट मार्केट का इंडिया पे भी पड़ता है। अब अदानी जी एक दिन में 14,000 करोड़ का मुनाफा हो जाता है, 14,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में अपना हो जाएगा। आपको लग रहा है कि इतनी जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं वो लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी कहीं कुछ बिना, विदाउट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड दिस कैन बी। और सुप्रीमेसी क्या है? द न्यू गोल्ड ऑफ दिस एरा इज इंफॉर्मेशन। और अगर कंप्यूटिंग पावर आपके पास आ गया, क्या आप नहीं कर सकते? पेनिसिलिन बनाने के लिए 100 साल लगे थे, उससे ज़्यादा लगा था, बट कोरोना आया तो कितने समय में, कब आया और कब तक वैक्सीन बन गए? कैसे बन गए इतने कम समय में? इतने कम समय में कैसे बन गए? डेटा और कंप्यूटिंग पावर। पहले लोग मिलाते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, देखते थे, अब सारा का सारा कंप्यूटर में ही होता है। टेक दिस मिलाइए, सिमुलेशन कीजिए, देखिए वो स्टेबलाइज है कि नहीं। तो सारा कैलकुलेशंस कंप्यूटर में ही हो जाता है, रादर देन डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन द रियल फील्ड। ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स में भी इतने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं कि काफ़ी टाइम लगता है। बट इफ़ यू हैव अ फास्ट कंप्यूटर इट कैन बी डन विद इन
small amount of time, and you can do fairly large number of trials, right? So not only in medical field, security field, और security मेरे हिसाब से, though this FDP is quantum and machine learning आएगा तो आपकी समृद्धि होगी, आप अपने सहूलियत के लिए चीज़ें बनाएंगे। पहले एक गेम आता था माइक्रोसॉफ्ट का, एज ऑफ एम्पायर्स, किसी ने खेला है? नहीं खेला, आप लोग शायद नहीं होंगे। उसमें होता क्या था कि कुछ पॉइंट्स होंगे, आप अपना साम्राज्य बनाएंगे, ठीक है, आपके पास कुछ इनिशियली चीज़ें होंगी, लोग होंगे, सैनिक होंगे, पेड़ काटो तो इतने पॉइंट्स मिलेंगे, खदान खुदाई करो तो गोल्ड मिलेगा, तो ये मिलेगा, फल लेकर के आओगे तो इतने आओगे, फिर इतना होगा तो आप 2 सैनिक खरीद सकते हो, 2 फार्मर खरीद सकते हो, 2 मजदूर खरीद सकते हो। तो मैं हमेशा उस गेम में हार जाता था, क्योंकि मैं खदान, फार्मर, घर बनाना इन्हीं में लगा रहता था, और जब मैं समृद्ध होता था तो बाहर से सैनिक दूसरे वाले का करके मार देते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या किया कि पैरेलली इन चीज़ों के साथ साथ मैंने अपनी सैनिकों को भी बनाना शुरू किया कि उस समय वो डिफेंड करें, ठीक है। तो जब भी ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, सिर्फ आप अपने आप में सीमित रहोगे, यू आर नॉट सेफ, सारे एफर्ट्स आपके टप्पल डाउन हो जाएंगे। आप मेहनत करके सब अपना करो, लेकर के जा रहे हो, कोई आगे 2 थप्पड़ मार करके छीन लेगा रोड पर से, तो आपका भी समर्थवान होना ज़रूरी है। तो क्वांटम की सबसे जो मुझे लगता है ज़रूरत है वो सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में। आप भी उतने कैपेबल बनिए, भले ही आप उसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने में कीजिए चाहे ना कीजिए, उसके बाद आप दूसरी चीज़ों में रिसोर्सेस में आप उसको यूज़ कीजिए, राइट। नाउ लेट अस कम टू द पीपीटी व्हाट आई हैव देयर। ओके, सो आई वाज समराइजिंग इट। बहुत हैवी हो गई है। We all know that digital computers changed virtually every aspect of our life. Well, the arrival of quantum computers could be even more historic than that. We're now at the initial stages of the next revolution. We're talking about a new generation of computers, the ultimate computer, a computer that computes on atoms, the ultimate constituents of matter itself. The question is, who's involved? Okay, now let us come to normal computing, today's world. Now this is the computing power what we have, from where we started and where we are landing. जो पहले हमारे कंप्यूटर्स थे 286, 386, वहाँ से शुरुआत की, और आज हमारे पास बहुत फेयरली कंप्यूटर्स हैं। जो मैंने पहला कंप्यूटर खरीदा था 1919 में, उसमें 128 MB रैम था, और आज मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम है। वो उस समय 50,000 का था। सो आज हमारे पास मेरे फ़ोन में उससे ज़्यादा पावर है, राइट। बट कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, ओके। बट अगर हम कैंडल बना रहे हैं और बढ़िया 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 कैंडल, उससे भी बढ़िया कैंडल, उससे भी बढ़िया कैंडल बना है, तो क्या हम बल्ब बना लेंगे? अगर हमारे पास घोड़ा गाड़ी है और उससे अच्छा घोड़ा गाड़ी, उससे अच्छा घोड़ा गाड़ी, पहिया बदल दे, एंगल बदल दे, डायनामिक बना, तो क्या हम एरोप्लेन बना लेंगे, बुलेट ट्रेन बना लेंगे? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? कैंडल और बल्ब में क्या अंतर है? डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उसकी अलग है, एंड डीपर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, डीपर। तो उसी तरह कंप्यूटिंग के लिए भी, जो कंप्यूटिंग हमारे पास अभी आ रही थी, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ा था, वह अब काम नहीं आएगा। आप यूँ मानो कि पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में लोग धन कहाँ छुपाते थे? घर में गाड़ देते थे। अब आप समझो कि आपकी ज़मीन चली गई, आपके घर पानी में बन रहा है, सिकारा वाले बोट हाउस में हो, अब वहाँ जाकर के खोद करके धन छुपाने की कोशिश करोगे तो होगा? ऑन द वाचर? नो, यू हैव टू लर्न इट इन अ डिफरेंट वे। सो इट इज़ द क्वांटम कंप्यूटिंग दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, ठीक है। और इसके बारे में अभी से जानना ज़रूरी है। ये चीज़ आपको पता है
Classical computers will do called 0 and 1. In quantum, we do have bits or qubits, and these qubits are again spin of the electrons. 0 could be in the north pole, 1 could be in the south pole, and in between there are other possibilities depending upon the spin. Okay, and this difference between 0 and 1 is the key player. क्वांटम बिट्स जो है क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्पिन से ही बन सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स? नहीं, ये लेजर्स पे भी बनते हैं. अगर आप लाइट्स बेस अगर देखो तो पोलराइजेशंस पे भी बनते हैं कि अ लाइट इज पोलराइज्ड लेफ्ट और राइट, वेयर द लाइट कैन बी पोलराइज्ड, एंड दिस कैन बी डन यूजिंग बीम स्प्लिटर. And such type of devices are available there if you want to have a quantum computing lab, but devices are costly. अगर आप सिंपल बीम स्प्लिटर को लगा करके क्वांटम बिट्स को जनरेट करना चाहते हो थ्रू पोलराइजेशंस, द टेबल इटसेल्फ कॉस्ट्स अराउंड 20 lakhs. 20 lakhs का सिर्फ वो टेबल आता है जिसपे इनको बीम स्प्लिटर को करोगे और जनरेटर और लाइट रिसीवर्स को डालोगे. It is there in one of the universities called JP Institute of Information Technology, नोएडा में 162 सेक्टर 62 में उनके पास क्वांटम कंप्यूटिंग की एक लैब है जिसमें कि ये एलिमेंट्री सेटअप है. And there are people in the physics department who are working in the quantum area for around 20 years. So I got an opportunity to go and interact with them. Okay. Now, इसके अलावा भी और तरीके हैं क्वांटम बनाने के, क्वांटम कंप्यूटिंग. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वन ऑफ देम इज आयन बीट्स, ट्रैप्ड आयन बीट्स. सेमीकंडक्टर में आयन्स को ट्रैप करके बना सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा भी एक और टेक्नोलॉजी है, बट मेनली स्पिन्स के ही थ्रू हो रहा है. क्वांटम टेक्नोलॉजी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे. व्हाट दिस प्रिंसिपल्स आर: सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, uncertainty, many body effects, coherence, decoherence, teleportation, no cloning. Teleportation, हाँ, यहाँ है, यहाँ सब सीधे अमेरिका भेज दें आपको अभी तुरंत, यहाँ गायब और वहाँ पहुँच जाए, कैसे होगा? अरे ये स्लाइड को मैंने डिलीट कर दी. What is superposition? Superpositions दो वेव्स हैं एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर सुपरपोजिशन हो जाता है. So what it says superpositions? The quantum mechanical level of to a bit is 0 and 1, ये तो है. For example, in between, जब 0 और 1 नहीं है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन 0 and 1 स्टेट में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं होगा बीच में, तो उस बीच में हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? An individual particle could assume a state which can be referred at 80% in 0 state and 20% in 1 state. तो जो इंटरमीडिएट वाला स्टेज है, ये स्टेज ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं, जो नहीं पता कहाँ है. इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है और उसको हमेशा हम मेजर भी नहीं करते. सिर्फ 0 और 1 के बारे में हमें पता होता है और सुपरपोजिशन का क्या स्टेट है नहीं पता. आप उसको बार बार मेजर भी नहीं कर सकते हो. टच मी नॉट प्लांट देखे हो? टच मी नॉट प्लांट छुई में सुने हो कभी? कैसा होता है? When you touch it, it swings. तो जो इसको मेजर करोगे ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा. जो मेजर करोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो उसको स्टेबल कैसे बनाना, ये भी चैलेंज है. ये कंप्यूटिंग इतनी आसान नहीं है. The state can be illustrated using Bloch sphere. ये Bloch sphere क्या है? ये डायग्राम आपको देखोगे Bloch sphere. तो उन्होंने कुछ फैक्टर्स बनाए, थीटा, साई, साइन, और इसके बेसिस पे इंटरमीडिएट स्टेट्स को इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करते हैं. आई डोंट वांट टू गो इनटू द इट्स कोर फिजिक्स, बट यस, स्टेट 0 को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट 1 को इस तरह से करते हैं, और वो जो एंगल्स हैं कि ब्लॉक स्फीयर है जो इस फेनोमेनन को डिफाइन करता है. ठीक है. सुपरपोजिशन मींस जो इंटरमीडिएट पोजीशंस हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता कि 0 1 के बीच में कहाँ पे है. नाउ दूसरी प्रॉपर्टी है एंटेंगलमेंट. एंटेंगलमेंट शब्द का अर्थ होता है उलझा हुआ, एक दूसरे के साथ टाइटली है उलझा हुआ, जैसे आपका केबल उलझा हुआ है या जुड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा. तो यहाँ पे एंटेंगलमेंट क्या देखिए, इट रिजल्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स. वहीं से इसकी शुरुआत होती है और इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए
ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट एरविन स्कॉटलैंडर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था EPR पैराडॉक्स। EPR का मतलब क्या है? पोडोल्स्की रोसेन पैराडॉक्स, आइंस्टाइन पोडोल्स्की तीनों ने मिलकर के एक्सपेरिमेंट किया था इसको, इसीलिए इसको EPR पैराडॉक्स कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया था? They considered a quantum mechanical system comprising of two adjacent particles which are subsequently separated and sent in different directions. दो क्वांटम पार्टिकल्स एक साथ हैं, ठीक है, और उसको दो अलग अलग जगह में भेज दो, अलग अलग दिशा में भेज दो। दो एक साथ हैं शुरू में, अब उनको भेज दो। क्या कह रहे हैं? According to quantum mechanics, they form a single system regardless of their distance. अब वो दोनों एक ही सिस्टम का पार्ट है, भले ही उनको कितना दूर कर दिया जाए। इसका क्या मतलब कि आप एक ही सिस्टम का पार्ट है, थोड़े देर के लिए अगर इंटरैक्ट किए हैं, मिले हैं, तो वो एक सिस्टम का पार्ट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सी फर्दर, even if you send it a light years ago, they have a fixed total momentum as long as neither of the particle is disturbed. मतलब उनका मोमेंटम, उनकी प्रॉपर्टीज एक ही है जब तक कि उनसे छेड़खानी नहीं की जाए। अब छेड़खानी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़खानी क्या हो सकती है? सपोज दोनों आप एक ही साथ एक ही समय में हॉस्पिटल में जन्मे, ठीक है, नेचुरली आप एक साथ आए, आइडेंटिकल, तो उसके बाद आप लोगों का ग्रोथ, आप लोगों का जो बिहेवियर वो चेंज कैसे होता है 20 साल बाद? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ब्रिंग्स दैट चेंज इनटू द पर्सनालिटीज? कहाँ पढ़े, किन लोगों से मिले, कैसे रहे, कहाँ सीखे, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट से जो आपकी पर्सनालिटी को इंटरेक्ट करते हैं। तो उसी तरह जितने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, जितने मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो इनसे इंटरेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन से कुछ ना कुछ तो छेड़खानी करेंगे। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें इन चीज़ों से बचा के रखना है। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं आना चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़खानी करे, ठीक है। इसीलिए आपने जो कंप्यूटर्स देखे वो बहुत ही सिक्योर्ड प्लेस में थे, वहाँ कोई फील्ड ना जा पाए, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर्स इस तरह पोर्टेबल कंप्यूटर्स की तरह नहीं होंगे, अभी भी जो बन रहे हैं बहुत बड़े होंगे, और उनके जो एनवायरनमेंट्स होंगे हाईली सिक्योर्ड एंड स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। खैर, एंटेंगल प्रॉपर्टी समझते हैं। However, the distribution of the total momentum between the two particles has yet not been determined. अभी तक हमने मेजर नहीं किया है जो दोनों को भेज दिया जाएगा। Only when a measurement is performed on one particle in the system, compelled to apply a distribution, so that the corresponding property is also immediately determined by the other particle. For example, if the total momentum of particle is known, the measuring of the other particles reveals the momentum of the other. यानी एक का आपने मेजर किया, दूसरा का भी करोगे तो वही मिलता है। यानी ये जुड़वा फिल्म की तरह हो गए। नाउ जुड़वा मतलब समझ रहे हो? इसके साथ जो करोगे उसके साथ भी अपना सेम प्रॉपर्टीज हैं एक साथ। नाउ आइंस्टाइन, पोडोल्स्की एंड रोसेन concluded from this that the momentum of the two particles must already be fixed prior to the measurement. यानी जब ये गए थे उसी समय इनका क्या मोमेंटम होगा, क्या स्पीड होगा, सारा का सारा अपना हो जाएगा, इनका फिक्स होगा, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब उतने दूर चले गए तो आप उनको बोलो कि ये करना है तो वो करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जब दो चीज़ें गए हैं तो उसी समय वो जो जानकारी लेकर गए थे, कहीं भी चले जाए वो जानकारी उसी समय की है, और उसी के आधार पे वो अपना स्टेट मेंटेन कर रहे हैं, अनडिस्टर्ब्ड है, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक वहाँ चला गया हो और एक दूसरे को बोल रहा हो, अच्छा तुम लेफ्ट मूव करो, एक स्टेप और लेफ्ट मूव करो, एक स्टेप पीछे जाओ। ऐसा हो सकता है क्या कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स कम्युनिकेट कर, ऐसा पॉसिबल है? लाइट ईयर है, लाइट की स्पीड से भी तेज आपको सिग्नल भेजना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। वो अलग अलग डायरेक्शंस में और इतने स्पीड से और इतने दूर हैं, तो आपका कम्युनिकेशन का स्पीड कितना होगा कि हम एक ही साथ मेजर कर रहे हैं तब भी दोनों का बराबर है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कम्युनिकेट क्या कंक्लूड किया? द मोमेंटम ऑफ द टू पार्टिकल्स मस्ट ऑलरेडी बी फिक्स्ड प्रायर टू द मेजरमेंट, बिकॉज अदरवाइज द पार्टिकल्स व्हिच आर नाउ फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर would have to communicate at a speed which is more than that of light. ठीक है। इसके बाद आया आपका स्क्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट।
इन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट ऐसा बनाया था कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव डीके पता है, डीके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डीके होते हैं और डीके प्रोसेस कितना लंबा हो सकता है, कुछ सेकंड से कुछ कई साल लग सकते हैं डीके में, ठीक है। तो उसने कहा कि माना इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो अगर डीके होगा तो ये चीज ट्रिगर होगा, और ये ट्रिगर होगा तो यहाँ पे हथौड़ा है, वो हथौड़ा फायर होगा, और हथौड़ा फायर होगा तो ये जो जहर का कैप्सूल है वो जहर टूट जाएगा और कैट मर जाएगी। किंतु तो पूरा का पूरा पार्टिकल्स का लंब है जिसको डीके उन्होंने रखा है, सारे एटम्स डीके हो यह भी जरूरी नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। जिस तरह बम की लड़ी लगाता है तो सारे बम तो फटते नहीं है ना चैन वाले में, ठीक है। तो उन्होंने इसको कैट को बंद करके एक डब्बे में रख दिया। अब बताओ कि उस कैट, वो जो डब्बे में जो कैट है वो जिंदा है कि मर गई? अगर वो आइटम डीके ही नहीं हुआ तो जब वो पर्टिकुलर बम फटेगा तभी ना वो ट्रिगर फायर होगा, जब वो पर्टिकुलर एटम डीके होगा तभी ही होगा। वो पर्टिकुलर एटम डीके हुआ कि नहीं हुआ ये थोड़ी पता है आपको कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात इस कैट एक्सपेरिमेंट में कि बंद है तो पता नहीं कि आपको एलिमेंट कि कैट मरी है कि जिंदा है। यही वो प्रिंसिपल बता रहा था सुपरपोजिशन वाला भी, कि सुपरपोजिशन स्टेट में कहाँ पे क्या है आपको पता नहीं है क्या चीज़ है, जब तक उस डब्बे को खोला ना जाए, जब तक हम उसको मेजर ना करें, ठीक है। किंतु ये एटम और ये कैट वो एसोसिएटेड है, अगर वो एटम डीके हो गया तब तो कैट का बचना नामुमकिन है, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट था। अच्छा अब देखो टेलीपोर्टेशन के बारे में। टेलीपोर्टेशन क्या होता है? एनीवन who can tell about teleportation? टेलीपोर्टेशन के बारे में किसी को पता है? सर मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ओवर टेलीफोन लाइंस, चाहे वो वायरलेस हो या वायर हो, किसी को दूर में ट्रांसपोर्ट कर देना टेलीपोर्टेशन कहलाता है। टेलीविजन, टेली मतलब दूर, विजन मतलब देखना, टेली ट्रांसपोर्टेशन। आप यहाँ पे हो अभी, तुरंत आपको मैं दिल्ली भेज दूँ, तुरंत। जिस तरह से टेलीविजन काम करता है, सिग्नल भेजता है, उसी रफ्तार से भेज दूँ, तुरंत यहाँ से गायब हो गया कहीं और प्रकट हो गया। पॉसिबल है। बहुत सारे सीरियल्स में तो देखते होंगे, मूवीज में देखे होंगे, ठीक है। अब देखो क्वांटम उसके बारे में क्या कहता है। Quantum teleportation is a process in which exact state of a quantum system, typically represented by a qubit, is transmitted from one location to another without the physical transfer of the particle carrying the information. वो पार्टिकल नहीं जा रहा है, बट वो पार्टिकल यहाँ से वहाँ प्रकट हो गया, बट यहाँ से वहाँ हम कुछ भेज नहीं तो रहे हैं। यहाँ से भेजेंगे तो अपना बीच के रास्ते से होते हुए, बीच के स्टेशन से, जिस तरह हमारी ट्रेन होती है, वो जाए और बीच में कोई देखा अच्छा वो पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तुरंत यहाँ से वहाँ चला गया, कहीं कोई फिजिकल ट्रांसफर नहीं है। ऐसा क्या हो सकता है? कुछ मीटर तक कर भी दिया इन्होंने। Despite the term teleportation, it's important to note that it does not involve moving matter instantly. Matter यहाँ से नहीं मूव कर रहा है टेलीपोर्टेशन में, आप देखो, ठीक है। It relies on the principle of quantum entanglement. Entanglement क्या है अभी बताया मैंने, क्या बताया कि दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम प्रॉपर्टीज है, जो शुरू में एक सिस्टम का पार्ट थे और दूर हो गए हैं, तो दोनों सेम प्रॉपर्टी से जुड़वा है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से कैसे ये सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, देखो प्रिपरेशन ऑफ हम क्वांटम स्टेट हम करते हैं। द सेंडर एलिस एंड द रेसिपिएंट बॉब शेयर एंटेंगल्ड पेयर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब शुरू में दो एंटेंगल्ड पेयर्स थे, ठीक है, दोनों के पास एक एक है, ए और बी। एलिस इज ऑलवेज द सेंडर, बॉब इज ऑलवेज द रिसीवर इन क्रिप्टोग्राफी। Alice also has a third particle that she wants to teleport and she wants to transmit
इट्स क्वांटम स्टेट टू बॉब। एलिस के पास एक और है, ठीक है, और वो बॉब को भेजना चाहती है, बॉब को भेजना चाहती है। now इसमें क्या होता है, joint measurement. Alice performs a joint measurement on her particle and the particle she wants to teleport. This measurement is based on the entangled pair and result is two classical bit of information. तो जो उसके पास entangled pair है, ठीक है, और जो उसके पास दूसरा जिसको भेजना है, उस दोनों को मेजर किया उसने और उसकी प्रॉपर्टीज निकाल ली कि कितना एंगुलर मूवमेंट या क्या प्रॉपर्टीज है, और उस प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है उस वैल्यू को भेजेंगे, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को भेजेंगे वहां पे। नाउ व्हाट हैपेंस देयर, Alice sends the two classical bits of information to Bob through classical communication channel. This information contains details about the outcome her joint measurement. उसने जो मेजर किया था उसका मेजरमेंट इसने भेजा, और यहाँ क्या किया, based on the information received from the Alice, Bob performs a specific operation on the entangled pair. जो entangled pair था उसके ऊपर कुछ वो calculations perform करेंगे, operations perform करेंगे, और इससे क्या होगा, जो entangled pair है वो exact quantum state में आ जाएगा जो कि teleport करना चाहती थी Alice. Try to understand. फंडामेंटल एलिमेंट्स उसके पास ऑलरेडी था, सिर्फ मेजरमेंट चाहिए था। हम मास को ट्रांसफर नहीं कर सकते, E = mc² फार्मूला भी अलाउ नहीं करता। और टेलीपोर्टेशंस में इन्होंने कुछ मीटर तक अभी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो क्वांटम टेलीपोर्टेशन सक्सेसफुल हुए, 60 मीटर या 100 मीटर तक उन्होंने कर दिया है, अब ज़्यादा दूर तक करना चाहते हैं। इट इज़ देयर, यू गो एंड सर्च। अच्छा, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी देखो क्या है। इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, वेलोसिटी होता है, लोकेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ठीक है। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कितना है ये तो चलो मेजर कर लोगे, बट कहाँ पे है ये दोनों बड़े अनसर्टेन हैं। प्रिसाइजली इनको मेजर करना अपने आप में चैलेंज है, और यही अनसर्टेनिटी है। इफ द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज मेजर्ड, दिस इन्फ्लुएंसेस द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है उससे अगर मेजर करते हो, क्या मेजर करते हो, लोकेशन, तो वेलोसिटी को भी अफेक्ट करता है, वेलोसिटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। नाउ सिंस लिसनिंग इन ऑन अ मैसेज ऑलवेज कंस्टिट्यूट अ मेजरमेंट, अगर हम किसी चीज को सुनते हैं तो मेजरमेंट ही हुआ ना एक तरह से। ध्यान दो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी चीज को हम सुनते हैं तो एक तरह से मेजर ही कर रहे हैं ना कि आपकी आवाज़ किस लेवल पे आ रही है, कितनी आ रही है। और ये यहाँ बोल रहा है कि वेलोसिटी, अगर आप लोकेशन को मेजर करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो पता नहीं चलेगा यार कुछ गड़बड़ हुआ है। तो क्वांटम का फंडामेंटल चीज़ देखो कि अगर क्वांटम डेटा जा रहा है, अगर उसको आपने सुनने का भी कोशिश किया तो उसकी वेलोसिटी, और तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने तो कुछ किया है, कितना सेंसिटिव है ये प्रॉपर्टी। इतनी सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग और दूसरी चीजों में, सिक्योरिटी में, कि अगर हम कुछ चीज ट्रांसफर भी कर रहे हैं, आप उसके साथ किए तो रख भी लिए ना, तो आप उसको कुछ डिकोड नहीं कर पाओगे सालों साल तक उसमें। इतना सिक्योर क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम इससे बनेंगे। नाउ सिंस लिसनिंग इन ऑन अ मैसेज ऑलवेज constitutes a measurement, a listener inevitably causes a noticeable disturbance in the transmission of the message. Now, which can be recognized by sender and the receiver. दोनों को पता चल जाएगा. Now, quantum cryptography makes use of this principle. Next, many body effect. एक एटम है, एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मतलब आप लोगों को मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, येलो शर्ट वाला, व्हाइट शर्ट वाला, ब्लैक शर्ट वाला,
किसे? In which shell write on the different like L and E. वो अभी कॉम्प्लिकेटेड है, समझने के लिए वो शेल्स बनाए गए हैं, बट इट इज नॉट दैट इजी. इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी नंबर्ड, राइट? कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस रोटेशन पे है, एंगल बदल गया, नीचे आ गया, शेल कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड है. क्वांटम सिस्टम्स आल्सो हैव अ स्पेशल फीचर कॉल्ड दे कैन ओनली बी डिस्टिंग्विश्ड बाय मेजरमेंट्स. सिर्फ आप मेजरमेंट से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि डिफरेंट है कि नहीं. आप मानो कि 4 लोग हैं, चारों डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा? हम सूट पाने एक ही तरह के, तो सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट से पता चलेगा कि कौन सा क्या है. और मेजरमेंट, classical macroscopic objects can be distinguished from one another by marking कर करके क्लासिकल चीजों में पहचान करो, बट यहाँ पे नहीं है. One cannot number the electrons in an atoms, right? फिर क्या है? Quantum mechanical particles have an intrinsic property which has no classical counterpart. They have intrinsic angular momentum called spin. तो angular momentum और spin के basis पे उसको measure करेंगे, ठीक है? It can only have discrete labels, और इसमें भी further हम physics में जाएंगे तो integer multiples होते हैं. I will not go there further, but try to understand that it is difficult to identify electrons. अच्छा, एक और important property है coherence decoherence property. Coherence decoherence property क्या है? Coherence means the qubit is in the superposition of two or more states, and these states are preserved without interference from the external factors. तो जो दो क्यूबिट्स हैं वो अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स में उनको कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, तो हम कह रहे हैं कि ये कोहेरेंस है. और जो उनके साथ छेड़खानी कर दोगे तो ये डीकोहेरेंस है, ठीक है? तो डीकोहेरेंस प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है. Decoherence on the other hand refers to the loss of coherence in the quantum system due to interactions. ये interactions कैसे होते हैं? Electromagnetic radiations, coupling with other qubits. कोई और qubit भी पड़ोस में आया तो वो disturb करता है, ठीक है? And thermal fluctuations. Thermal fluctuations मतलब temperature. सुपर कंप्यूटर्स जो बने हैं, जो काम करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा -डिग्री में काम करते हैं. वो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो हो ही नहीं सकता. ये स्टेबिलिटी इन इलेक्ट्रॉन्स की बन ही नहीं सकती है. सुपर कोल्ड स्टेट्स में वो काम करते हैं. एंड फर्दर फिजिक्स में जाओगे तो मतलब सुपर कोल्ड स्टेट्स में लाकर के उन एटम्स को स्टेबलाइज किया जाता है. सो मेंटेनिंग दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर अ फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम इज अगेन चैलेंजिंग. इनडायरेक्टली मैं हमेशा चैलेंजिंग कह रहा हूँ. ये कहना चाहता हूँ कि जिन क्वांटम कंप्यूटर्स और प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे हैं, एक वर्किंग सिस्टम्स बनाना अभी भी चैलेंजिंग है. हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि दूसरे कंप्यूटर्स की तरह हम मास प्रोडक्शंस कर दें एंड दे आर रिलायबल. अभी जो क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए गए हैं उसमें भी जो कैलकुलेशंस आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज एरर्स हैं. हम उस राह पे हैं बट अभी भी वहाँ पे नहीं है कि एग्जैक्टली मिल जाए जिस तरह से ये रिलायबली कंप्यूट करता है. क्वांटम कंप्यूटर्स भी हमें दे दे बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द प्रॉपर्टीज which lie here. Okay, now क्या है मिटिगेशन? क्या है? एरर करेक्शन प्रोटोकॉल्स एंड यूज ऑफ क्वांटम एरर करेक्टिंग कोड्स. अब ये क्या नया चीज आ गया? अगर आपने कम्युनिकेशन थ्योरी क्लासिकल कंप्यूटर्स का पढ़ा होगा तो एनकोडिंग आता है, कोडिंग थ्योरीज आता है, ठीक है? एरर करेक्शंस, चेकिंग वगैरह आता है. तो वह क्वांटम में भी तो आएगा जब हम क्वांटम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. इंफॉर्मेशन थ्योरी और ये तो अब देखो इंफॉर्मेशन थ्योरी जो मैंने कहा एक नया सब्जेक्ट, नया फील्ड आ गया. आपने बीटेक में कंप्यूटिंग से रिलेटेड कितने कोर्सेज पढ़े हैं? आप सोचो इस कंप्यूटर को समझने के लिए. पहले आपने डिजिटल डिज़ाइन से शुरू करते हैं. गेट्स अभी तो यहाँ बताया नहीं, यहाँ भी गेट्स हैं एंड दिस गेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्वांटम गेट्स. आज जो आप प्रोग्रामिंग करोगे, क्वांटम प्रोग्रामिंग की बात करोगे तो क्विस्किट लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे और आपको फंडामेंटल गेट्स ही बनाना सिखाएंगे और उन फंडामेंटल गेट्स से आप फंडामेंटल सर्किट्स बनाएंगे. तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट. उसके बाद क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी, वह मैथमेटिक्स इंफॉर्मेशन थ्योरी की जो क्वांटम में एरर करेक्शन, डिटेक्शन और ये करे. आएगा, धीरे धीरे आएगा. यू आर स्टिल एट द अर्ली. ये चीज़ें भी करिकुलम में आएंगी बट अभी इनकी किताबें भी नहीं है एज इट इज़, जो कि एक टेक्स्ट गाइड की तरह हो. लोग भी नहीं हैं
किंतु लोग जान रहे हैं कि इसकी अब क्षमता आ गई है कि बहुत जल्दी अब इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तभी सरकार ने भी 600 करोड़ का बजट दिया था ना इस बार, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए 600 करोड़ का हम बजट दे रहे हैं। अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई सेंटर अगर है, वो कोई काम कर रहे हैं तो आप अपना प्रपोजल सबमिट करो, वी विल सैंक्शन यू। बट कम लोग हैं भी काम करने वाले, क्योंकि देखो कितना तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये चाहिए, कितनी बड़ी लैब्स चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट कुछ इम्प्लिसिट एजम्पशंस के बेसिस पे कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज बना करके जो रिसर्च पेपर्स लोग छाप रहे हैं, तो उससे अपना ठीक है हम कुछ क्वांटम में कर रहे हैं। क्वांटम मशीन लर्निंग की बात है, क्वांटम चीज़ों की बात है, बट वो डेटा कहाँ से लोगे, वो इनपुट कहाँ से आएगा? नोबडी टॉक्स अबाउट दैट, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट। क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या डायरेक्टली हम इनपुट दे देंगे कीबोर्ड से लेकर के? नहीं। अभी भी जो प्रपोजल्स है उसमें है कि हमारा पास क्लासिकल कंप्यूटर होगा, क्लासिकल कंप्यूटर में प्री प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद इनपुट क्वांटम को देंगे और क्वांटम जो आउटपुट देगा फिर से प्री प्रोसेस होकर के आएगा। आज तक का सिनेरियो ऐसे ही चल रहा है। ओके, लेट अस मूव फर्दर। तो देखो क्वांटम का एक एक जो चीज़ है वो एक एक सब्जेक्ट बनेगा। अभी आने वाले समय में आप कहोगे कि भाई कोई एक आया था उसने कहा था कि नहीं ऐसा होने वाला है। नो क्लोनिंग थ्योरम, नो क्लोनिंग थ्योरम क्या कह रहा है? देखो, नो क्लोनिंग थ्योरम इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स दैट स्टेट्स दैट इट इज impossible to create an identical copy of an arbitrary known quantum state। यह इम्पॉसिबल है कि अगर एक एटम में आपको दे दूं तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जैसा आप उसको क्लोन करके दूसरा बना दो। मेरी बात को समझो, एक इलेक्ट्रॉन में आपको दे दूं आप उसका दूसरा नहीं बना सकते, एग्जैक्ट नहीं बना सकते। क्या चैलेंज है इसमें? अगर एग्जैक्ट आप नहीं बना सकते तो आप तो कॉपी नहीं कर सकते। मैंने एक वर्ड फाइल लिखा है, अब मैं कहूं कि आप इसको कॉपी कर लो, तो मैं कह रहा हूं कि आप इसका एग्जैक्ट बना ही नहीं सकते, तो कॉपी भी नहीं कर सकते। Sir, if we use quantum computing in cyber attacks, so it might be a possibility that cloning will happen. No, I will come to that. I will come to that. My question is more fundamental than what you are answering. क्लोनिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? डू यू एग्री? और क्लोनिंग इज पॉसिबल। क्या चैलेंज है कि इलेक्ट्रॉन को क्लोन करने में? क्या प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स की? मोमेंटम एंड स्पिन, मोमेंटम एंड स्पिन, और तो वो तो रुकेगा नहीं, ठीक है। मैं ये सेल्स है, घूम रहा हूँ, सपोज दिस इज सेल नंबर 1 2 3 4, आप मेरा क्लोनिंग करो। सपोज ये 4 है, जब आप 4 वहां पर जाओगे तब तक मैं कहां चला गया, ठीक है। और इसके साथ उतने प्रिसाइज मेजरमेंट ही नहीं पॉसिबल है। तो जब मेजरमेंट ही प्रिसाइज नहीं पॉसिबल है तो हाउ डू यू बिलीव कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है कि वो प्रिसाइजली वहां प्लेस भी कर दें? जब आपने बताया कि 0 और 1 के बीच में इन्फिनिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, बट हु बॉदर्स अबाउट एग्जैक्ट थिंग? आपको पता है मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स इन दिस वर्ल्ड आर ओनली अप्रोक्सीमेशंस, ओनली अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर यूजफुल। ये किसी बड़े मैथमेटिशियन ने कहा था, आई फॉरगॉट द नेम, दे ऑल आर अप्रोक्सीमेशंस बट स्टिल वी यूज देम। अरे इसी से तो निकल गया कि फजी आया। फजी लॉजिक के बारे में पता है? हमेशा हम काम करते हैं फजी चीज़ों पे। एक्यूरेसी सबको पसंद है ना? चलिए आपको भी एक्यूरेसी पसंद है। मैं कहूँ क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा 5:29 और 30 पे। आसिफ, मुझे खाना में तुम प्लेट में दो तो 577 चावल दो, तो क्या कहोगे आप? अरे मुझे गाड़ी अपने पार्क करनी है, वहां पे गाड़ी का मैं लेके फीता नापता हूँ कितना जगह है, 2 पिलर्स के बीच में गैप है, अच्छा है ना, एक्यूरेसी है ना? एक्यूरेटली काम करना तो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह की एक्यूरेटली अगर मैं काम करूं तो क्या होता है? क्या कहोगे? जरूरत है इतनी एक्यूरेसी की? नहीं है। तभी लॉटफीज़ादे ने फजी लॉजिक के निकाला। फजी लॉजिक में पढ़कर उन्होंने के कांस्टेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते लॉटफीज़ादे का ही दिया हुआ, ग्रेट मैथमेटिशियन, कहा कि इनकी ज़रूरत नहीं है, फजी से ही अपना शुरुआत होगा। फजी का लोगों ने मजाक उड़ाया, फजी मतलब कंफ्यूजन, नो थिंग,
बट फजी आज मेडिकल में भी यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ हो रहा है, एक फजी की अलग दुनिया है। तो एक्यूरेसी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, ठीक है, और उसके बाद भी हम यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं, आप डिजिटल बीपी मीटर लेकर के घर में रखे हो ना, एनालॉग भी है डिजिटल भी है। डिजिटल एक्यूरेट देता है, 3 बार नापो तीनों बार अलग अलग मेजरमेंट्स देते हैं, बट तीनों का एवरेज ले लो तो फेयर बिट यू गेट इट ना, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम क्लोनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो चीज़ फेल हो गया। थोड़ा बहुत भी पता चले तो वो यूजफुल शायद हो जाए, ठीक है। ये मे भी हमेशा सिस्टम डिजाइन कर लें जिससे कि कुछ और प्रेडिक्ट कर पाए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज हैं, डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। हम काम चला लेते हैं कैलकुलेशन से और अप्रोक्सीमेशंस निकाल कर। ओके, नाउ सपोज यू हैव एन आर्बिट्ररी क्वांटम स्टेट psi and you want to create an identical copy of it, तो क्या करेंगे? In classical physics, one could imagine measuring the state and then preparing another state in the same state using the measured outcomes. However, quantum mechanics, the act of measuring generally disturbs the measurement. आपने मेजर कर लिया, किंतु आपके मेजर करने के बाद जो ओरिजिनल वाला था वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि नो क्लोनिंग थ्योरम इसको कहा गया है। डिटेल में पढ़ोगे तो और डिटेल में, मैं तो सिर्फ इसका ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। अदरवाइज दिस टॉपिक्स विल गो, ईच टॉपिक विल गो इन ग्रेट डिटेल, ठीक है। तो अभी तक जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, प्रिंसिपल्स है क्वांटम कंप्यूटिंग के, मैंने आपको वो बताया कि जो बिगर चीज़ें जो लोग कर रहे हैं, जब तक आप इन चीज़ों को जोड़ोगे नहीं तो वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कुछ बना दिए, वो फिट ही नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है ना। क्वांटम के एप्लीकेशंस किन एरियाज में आ सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के? सबसे ज़्यादा क्रिप्टोग्राफी में आएगा, और क्रिप्टोग्राफी में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्वांटम क्या दे रहा है? नो क्लोनिंग थ्योरम दे रहा है, ऑब्जर्वर इफेक्ट दे रहा है, और क्वांटम एंटेंगलमेंट दे रहा है। एंटेंगलमेंट क्या है? जुड़वा, जो यहाँ पे शुरू में था वही चीज जिसके पास भी एक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये चीज हम यूज कर सकते हैं QKD प्रोटोकॉल। QKD होता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी में जो प्राइवेट की बात है, तो कीज दोनों के पास होनी चाहिए, तो कि सिक्योरली किस तरह से ट्रांसफर करो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये फंडामेंटली वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर्स भी एक रिसर्च एप्लीकेशंस में, देखो यहाँ पे क्या है, क्वांटम डेटा ट्रांसमिशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस। डेटा ट्रांसमिट अगर हम क्वांटम के थ्रू करें तो क्या हो सकता है, क्या नया रूप आ सकता है इससे? डेटा ट्रांसमिशंस हम आज के कंप्यूटर से कर रहे हैं, क्वांटम से करें तो क्या अंतर आएगा? बताओ, आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन की क्या स्पीड क्या है? 100 Mbps। सीनियर लोगों से पूछते हैं, सर सबसे पहले आप लोगों ने घर में जब इंटरनेट लगवाया था तो उस समय स्पीड क्या थी? मॉडेम से लगवाया होगा, मॉडेम से किसने यूज किया होगा? 128 kbps। मतलब क्लिक करो तो 5 सेकंड वेट करो कि सिंपल सा डाउनलोड होगा। If you apply this current browser in that folder one, so it is impossible to open. Impossible, because they have gone very, very bulky. Now you see the transmissions, how it has varied. And further, if you have a modem based technology over there and you are using your internet, and if somebody calls you on the phone, you will not come to know that somebody is calling it. It will tell you that the phone is busy. तो आप बहुत समय तक इंटरनेट भी नहीं चला सकते, नहीं तो फोन बंद हो जाएगा। अच्छा, आपको 100 Mbps 30 Mbps की जरूरत क्या पड़ती है घर में? क्यों जरूरत पड़ती है? जरूरत है उतनी की, स्पीड की जरूरत है। दुनिया में हर चीज गवर्न होता है नेसेसिटी से। आपकी जरूरत है तभी वो चीज आएगी, जरूरत नहीं है तो नहीं आएगी। आपको स्पीड की जरूरत है, क्यों जरूरत है स्पीड की?
क्यों? What do you do that you require fast data transmission? Maybe at home we generally must like audio video data, then uploading and downloading. आजकल टीवीज भी इंटरनेट से चलती हैं, Yes. right? You are getting multimedia content. The quality of the multimedia content you want very good, so the size is going to increase. Of course, there are the techniques to minimize it, and the people are working in that domain also. So inherently, we have got many applications which are data intensive. तो अब ज़रूरत है मुझे data speed की. I do and take online classes from my home. तो 20-30 बच्चे हैं, वीडियो है, ऑडियो है, it requires. मैं अलग रूम में अपनी क्लासेस ले रहा होता हूँ. समटाइम्स माय वाइफ टेक्स हर क्लासेस फ्रॉम अदर रूम. बेटा भी अपनी क्लासेस कर रहा है. तो एक ही घर में, हमारे घर में तो 3-3 लैपटॉप से चल रहे होते हैं. सी द नीड. टीवीज चल रहे हैं, एंड विद IoT अदर डिवाइसेस आर आल्सो कमिंग अप. सो वी आर मूविंग इन एन एरा वेयर द डेटा रिक्वायरमेंट इज क्वाइट हाई. पहले तो आपको जो डेटा प्रॉमिस किया जाता था तो डेटा मिलता भी नहीं था. 50 MB का आप लो और 50 MB के 5 MB भी नहीं आ रहा, मेजर करिए तो. फर्दरमोर इन नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स दे आर इंक्रीजिंग, तो हमें बैंडविड्थ भी चाहिए. ठीक है, 100 Mbps, Gbps, इसके आगे स्पीड कहाँ जाएगा? देयर इज अ लिमिट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट वी आर यूजिंग. उन पे भी क्षमता है कि एक लिमिट से ज़्यादा तेज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बॉटलनेक होगा. बट यहाँ तो लिमिटलेस है ना. इन्फिनिट प्रोसेसिंग पावर की बात कर रहे हैं ना, जो आज नहीं बाद में संभव हो. हम जब उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स बना लें जो स्टेबल हो, कम से कम जो हमारे एक्सचेंजेस हैं जिन पे ज़्यादा बॉटलनेक है, वहाँ पे हम क्वांटम कंप्यूटर्स लगा पाएँ. ठीक है, तो क्वांटम कम्युनिकेशंस में भी ये चाहिए. ओके, अभी तक जो हमारे पास मॉडल्स बने हैं वो बेसिक सिस्टम्स की बात करते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स को ही वो एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, अ होलिस्टिक मॉडल अभी हमारे पास नहीं है जो कि सारा एक प्रिंसिपल जोड़ करके हम बना लें. नो, दिस कुड बी कंफ्यूजिंग. क्यों ऐसा नहीं है? अलग अलग लोग अलग अलग तरह से रिसर्च कर रहे हैं. जैसे कि हम पैंट शर्ट ही बना रहे हैं, चलो हम पैंट शर्ट बनाने की टेक्नोलॉजी में काम करते हैं. ये एक ग्रुप है, ये पैंट शर्ट डिज़ाइन कर रहा है, वो एक ग्रुप पैंट शर्ट डिज़ाइन कर रहा है, वो एक ग्रुप पैंट शर्ट डिज़ाइन कर रहा है, ये एक ग्रुप पैंट शर्ट डिज़ाइन कर रहा है. हो सकता है कि एक ग्रुप ने कहा कि यार ये बेल्ट के लिए ना नाड़े वाला सिस्टम बना देते हैं कि पैंट में नाड़ा होगा. इसने कहा नहीं यार, हम पैंट के लिए ना बेल्ट बनाएंगे. तो क्या किया इन्होंने? 3 बेल्ट के लिए बकस दिए, एक इधर दिए, एक इधर दिए, एक इधर दिए. तो पीछे वाला निकल जाता है, जो झुके पीछे निकल गया. उन्होंने नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. When there are different research groups, they are finding solutions to the same thing differently. आप सभ्यताओं को देखें, इंसान हर जगह रहे. ठीक है, अब इधर में जो लोग रहे, हम तावा पे रोटी बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं. दूसरी जगह जाओ तो कढ़ाई को उल्टा करके रोटी बनाते हैं. पर्पस तो रोटी बनाना था, किंतु जो जहां से आए उनका विकास किस तरह से हुआ, वो उन कंडीशंस में रहे, उनके पास किस तरह का इनपुट था. तो टेक्नोलॉजी में भी प्रॉब्लम सेम हो बट द सॉल्यूशंस आर डिफरेंट. और सभी हर कंपोनेंट को अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. तो कोई अभी स्टैंडर्डाइजेशन इसका नहीं बना है. आज आप समझो ये बल्ब आपका फिलिप्स का है, आपका फ्यूज हो जाता है, तो बजाज का लाके लगा सकते हैं? Yes, sir. क्यों लगा सकते हैं? Compatible. कंपेटिबल है. आपने स्टैंडर्ड बना दिया, ये होल्डर है तो बल्ब का स्पेसिफिकेशन यही होगा. अभी हम उस चीज में नहीं बने हैं. जब रिसर्च किसी भी टेक्नोलॉजी का पीक पे पहुंचता है, बम्प केस, और जब पीक से डिक्लाइन होता है, तब समझ में आता है कि रिसर्च पूरा हो गया है, अब हमें टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत है. उससे पहले कभी भी टेक्नोलॉजी बना दोगे आधे अधूरी चीजों में तो फेल हो जाएगी. ठीक है, तो ये करें कि अभी भी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है क्वांटम कंप्यूटिंग के, बिट्स एंड पीसेस में है. अगर IBM ने अपना क्वांटम कंप्यूटर बनाने का कोशिश किया या जो कहा है, तो उसके टोटल सेटअप्स अपने अलग हैं. माइक्रोसॉफ्ट के अलग हैं, रिगेटी के अपने कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, सबके अलग अलग हैं, कोई एक नहीं है इनका. ये वही कह रहा है. ठीक है, बात सभी कर रहे हैं बट सभी अलग अलग एंगल से कह रहे हैं. ठीक है, दिस बिगर पिक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. नाउ दिस आल्सो रिक्वायर्स द मेथड्स नीडेड फॉर एरर करेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सिस्टम्स. तो अभी तो इंडिविजुअली कर रहे हैं,
when we make large systems, how we are going to handle it? That problem would be something further bigger, right? And quantum computers for specific problems such as factorations would be the first step towards experimental implementation. ये क्या कह दिया इसने? क्यों ये स्टेटमेंट कहा इसने? क्रिप्टोग्राफी का फंडामेंटल जो सिक्योरिटी का रीजन है ना, लार्ज नंबर फैक्टराइजेशंस कि प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, कई प्रोटोकॉल्स को इनिशियलाइज करते हैं तो प्राइम नंबर से इनिशियलाइज करते हैं या प्राइम नंबर्स के पेयर्स निकालते हैं तब इसको तोड़ा जा सकता है। अगर मैं लार्ज नंबर दूँ तो लार्ज नंबर को, कितने बड़े नंबर को आप लार्ज नंबर कहते हैं? 5 मिनट दे दीजिए। कितने बड़े नंबर को आप लार्ज नंबर कहेंगे? 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 10 डिजिट, 10 डिजिट। बट क्रिप्टोग्राफी बात कर रहा है 100 डिजिट नंबर्स की, 100 डिजिट्स। और वो भी लिमिट थोड़ी ही है, जब आप 100 तक कंप्यूटिंग पहुंचेगा तो हम उसको 200 कर देंगे। तो 200 डिजिट का जब नंबर होगा और उसमें से जब खोजना पड़ेगा तो सोचो, फॉर लूप लगाओगे 200 डिजिट का नंबर, फॉर आई इज इक्वल टू 0 टू लेकर के 200 डिजिट का नंबर। और जब वो प्राइम फैक्टर्स तोड़ दोगे तो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने लगेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम सबसे पहले होगा, सबसे जरूरत है। हॉस्पिटल, मेडिकल, खाना पाना, एआई मुझे बाद में चाहिए, पहले तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि ये चीज आ गया तो बाकी सारे लोग मेरे पास आ जाएंगे। सारे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से निकल जाएंगे। CIA का क्या कर रहा है, मोसाद क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब चीजें बैठे बैठे आप सुन सकते हैं विदाउट अपना नॉलेज। और वो सोचो कितनी खतरनाक चीज होगी। यू कैन नेवर इमेजिन इन विच वे इट कैन बी यूज्ड। मेरा तो यह मानना है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग अगर गवर्नमेंट बना भी लेंगे, सो देयर मस्ट बी देयर सीक्रेट मिशंस, वो किसी को डिस्क्लोज भी ना करें। और हर गवर्नमेंट के पास ऐसे कई मिशंस हैं, दे आर अनडिस्क्लोज्ड, बताते नहीं है। पता है साइबर सिक्योरिटी का फंडामेंटल क्या है? जो साइबर सिक्योरिटी का थॉरो आदमी होता है ना, ब्लैक हैट, वो एकदम मास्क रहता है, पता ही नहीं चलेगा कि कौन है, वो क्या करता है, कुछ भी भनक ही नहीं लगने देगा कि मैं ही हूँ या मैं ही किया हूँ, या कोई हिंट ही आपको नहीं देगा। हाउ टू बी हिडन, ब्लैक हैट, ब्लैक विच, ठीक है। तो मेरा मानना, अक्सर मेरे मन में आता है कि अगर किसी ने बना भी लिया तो भनक नहीं लगने देंगे कि हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग है और हम इसको ये करेंगे, क्योंकि दे विल यूज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मिलिट्री पर्पसेस। यूएस को देखो, जो भी टेक्नोलॉजीज आई, सबसे पहले सारे टेक्नोलॉजीज मिलिट्री ने बनाया, मिलिट्री ने यूज किया, उसके बाद में दिया गया जनरल पब्लिक को। जो भी क्रिप्टोग्राफी में आप एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, कोई यूज नहीं होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में कोई नहीं यूज होता है, कंपनीज भी अपनी अलग यूज करती हैं, गवर्नमेंट्स भी अपने यूज करते हैं। माय सेंटर इज हेडेड बाय प्रोफेसर श्रीकांत, जो कि टॉप क्रिप्टोलॉजिस्ट थे और जेसीबी, जॉइंट साइफर ब्यूरो ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के डायरेक्टर रहे हैं, जो कि 14 डिपार्टमेंट्स में हैंडल करते थे। तो बोलते थे कि जब कोई वार हो, कहीं कुछ हो, तो सबसे पहले फ़ोन हमारे पास आता था कि गिव अस अ साइबर कवर। भाई कौन सी लड़ाई ऐसी हो गई कि साइबर कवर की आप बात कर रहे हैं? तो अब क्रिप्टोग्राफी की चीज़ पड़ी कि जब भी कोड होता है तो पहले नोटपैड होता था, तो वो जो कोड कीज़ जनरेट करते थे ना, वो कीज़ जनरेट होते हैं कि कहीं भी कम्युनिकेट करना है वो सिक्योर चैनल के, वो कीज़ क्या होंगे, और कीज़ से ही कई बार जीते गए और हारे गए हैं। तो वो कीज़ ये जनरेट करते थे, वो कीज़ एक बार यूज़ होगी तो ख़त्म, दूसरा यूज़ नहीं होना है। और कब कब कहाँ किसने कीज़ को एक बार रीयूज़ कर दिया तो पकड़ा गया, मैसेज डिसाइफर हो जाता है। सो दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट देन व्हाट वी थिंक। कॉमन मैन को बहुत कुछ पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हिडन होती है, उसको लगता है कि सब पता है। अच्छा एक और देखो, सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, ये वाली चीज़ देखो, कूलिंग सिस्टम्स, स्टेट मेंटेन करने के लिए आपको कोल्ड सिस्टम्स चाहिए। माइक्रो प्रोडक्शन मेथड्स, जैसे माइक्रोचिप वगैरह अभी आप यूज़ कर रहे हो, तो इसमें भी तो जो सर्किटरी चाहिए वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। अभी तक हम सिलिकॉन चिप्स नहीं बना पा रहे हैं इंडिया में, जिसके कारण हर चीज़ की शॉर्टेज है, गाड़ियाँ नहीं बन पा रही हैं, प्रोडक्शन में नहीं आ रही हैं। इसके लिए चिप्स बनाना कौन बनाएगा? फ्यूचर देखो, वहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स हैं। ओके, सॉलिड स्टेट फिजिकल क्वांटम सिस्टम्स, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर केमिस्ट्री, मेजरमेंट एंड प्रोसेसिंग मेथड्स, इमेंस पोटेंशियल है इसमें। ये सब फील्ड है अपने आप में। बेसिक साइंसेस में ये
सेशन काफी लंबा हो रहा है, ब्रेक करते हैं, बट इस डायग्राम को देख लेते हैं। प्लैंक्स क्वांटम्स के साथ में लगभग 1918 उनका एक्सपेरिमेंट था, लास्ट टाइम। यहाँ से क्वांटम की शुरुआत होती है, फिर ईपीआर पैराडॉक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद बेल्स इनइक्वालिटी, बर्थ ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी ऑलरेडी है, ये किताब है, आपको पता नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता, लोग नहीं करते, बट ये है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटेशन, फिनमैन्स कंप्यूटेशनल मॉडल, आते आते क्वांटम क्रिप्टोग्राफी IBM ने बनाया, BB84 प्रोटोकॉल, क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल फॉर क्वांटम। कंप्यूटर नहीं बना बट प्रोटोकॉल बन गया, ठीक है। ड्यूचेस यूनिवर्सल क्वांटम कंप्यूटर, इसने क्वांटम कंप्यूटर का पहला प्रपोजल जो दिया यहाँ पे दिया 85 में। उसके बाद सोर्स एल्गोरिथम्स और ग्रोवर्स एल्गोरिथम्स एंड द विंसेस क्राइटेरिया फॉर, इन्होंने कुछ क्राइटेरिया पोज किए। अब शोर, ग्रोवर और प्लैंक्स देखो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सारे अलग अलग डोमेन के हैं। क्वांटम वाला एक ही नहीं है, फिजिक्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो वही करेगा। ये ग्रोवर नाम कैसा लग रहा है, किस देश के होंगे ये? इंडिया का। पंजाबियों में एक सरनेम होता है ग्रोवर, ये IIT रुड़की के प्रोडक्ट है। और इंडिया का मेरे समझ से सबसे बेहतरीन प्रोडक्शन फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस में जो कंट्रीब्यूशन यही है, ग्रोवर एल्गोरिथम, ठीक है। उसके बाद आयन ट्रैप बेस्ड कंप्यूटर, हम तो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और फोटॉन्स की, बट सॉलिड ये में आयन्स को किस तरह से करके बनाया है। फिर क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात हुई, फिर सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, सुपर कंडक्टर्स यूज हो रहे हैं। ये बात कब की है? 2007 का, ठीक है। अभी तक क्वांटम कंप्यूटर्स की कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद डी वेव क्वांटम एनीलर, एनीलर भी एक प्रॉपर्टी है जिसका मैंने बात नहीं किया क्योंकि और समझेगा। रिगेटी कंप्यूटिंग, ये देखो रिगेटी कंप्यूटिंग 2013 में एक कंपनी बनी है जिसकी सुप्रीमेसी है। सुप्रीमेसी क्वांटम हार्डवेयर, कंपोनेंट्स, एल्गोरिथम्स, सॉफ्टवेयर, सिमुलेटर्स, ट्यूटोरियल्स, सब इस रिगेटी के नाम से हैं। बहुत सारे टूल्स, कंपाइलर, सिमुलेटर्स रिगेटी ने बनाए हैं। ये क्वांटम के लिए ही ये कंपनी बनी है, इसका काम ही है क्वांटम पे काम करना। तो टूल्स वगैरह ये मिल जाएगी पीपीटी आपको, डोंट वरी, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने स्टेशन क्यू बनाया क्वांटम पे काम करने के लिए। गूगल क्वांटम सुप्रीमेसी कह रहे हैं कि हमने बना लिया, इतना बिट कर लिया, उतना बिट कर लिया। IBM का भी अपना है उसी काउंटर पार्ट में। और बहुत सारी अब कंपनीज 2021 तक देखिए, हनीवेल, ज़ेनू और IonQ सारे के सारे आ चुके हैं। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटर्स फाउंडिंग ग्रुप भी एक बन गया है और ये कहानी चल रही है, ठीक है। तो ये क्वांटम तक आने का सफर है। और शोर और ग्रोवर्स के एल्गोरिथम्स, ग्रोवर्स के बारे में देखिए, क्वांटम कंप्यूटर्स कैन रन ग्रोवर्स एल्गोरिथम, कैन, ठीक है, with such an unsorted database much faster than classical computers. This poses a threat to symmetric key cryptography which relies on difficulty of brute force attack. तो सिक्योरिटी रिलेटेड ही है ये, ठीक है। ये इनका था। शोर ने क्या किया था? लार्ज नंबर फैक्टराइजेशंस, कितने कम समय में लार्ज नंबर के फैक्टर्स हम निकाल लें, ये शोर का एल्गोरिथम था। तो एल्गोरिथम से हम डिटेल में बात करते तो और लंबा समय लगता। सो अभी कुछ और स्लाइड्स थे बट बस क्लोज करूंगा, मैं दिखा देता हूँ स्लाइड्स क्या है। कंपनीज विच आर देयर इन द क्वांटम रेस, कौन कौन से कंपनी है? IBM, गूगल, रिगेटी, माइक्रोसॉफ्ट, सारे हैं। ये छोड़ दो, क्यूबिट्स का तो वीडियो था, आप देख लेना। करंट रिसर्च एरिया इन क्वांटम कंप्यूटिंग अगर किसी को है तो कंप्यूटिंग में, कम्युनिकेशन में, सेंसर टेक्नोलॉजी में, नेटवर्किंग में, सिमुलेशंस में, ये सारे एरियाज हैं जिसमें permanent sir will take session. Sir will take session. Another speaker will take session. No, sir, you have to take up to one. No. Permanent sir can. ठीक है. We can discuss that, but just I'm showing you the slides. Okay, machine learning, cryptography. In security, if you want to go into security, then how quantum can be used? Post quantum key cryptography and main things are here. AI based research, how quantum can be used in AI, and what are the challenges in quantum computing? Coherence, decoherence, stability, scalability, gate fidelity,
quantum software and algorithms. These are all challenges with the quantum computing. Now, अगर मुझे प्रोग्रामिंग करनी है क्वांटम में तो कहाँ से करूँ? कुछ कंपनियां हैं जो सिमुलेटर्स दिए हैं, क्लाउड बेस्ड है, पाइथन बेस्ड है, आप कोडिंग कर सकते हो अगर करना है तो। क्विस्किट सबसे पॉपुलर है, सिक, क्विपर, प्रोजेक्ट क्यू, क्विस्किट तो किया है हमने, आप कर सकते हो। असेंबलर बेस्ड ओपन सोर्स क्वांटम असेंबलर, QCL, ये टूल्स हैं जो आप कर सकते हो। एंड क्वांटम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स, ये प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल है IBM का, माइक्रोसॉफ्ट का, रिगेटी का। इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे और उनकी टूल्स और सिमुलेटर से आप सिंपल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही रोल सारा आप प्ले करो, आप अपने लिए उस बड़े पिक्चर में छोटा सा रोल देख लो कि आप क्या करना चाहते हो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टार्ट बीइंग अ प्रोग्रामर और समथिंग एंड यू कैन अप्लाई इट इन वन, बट द बिगर पिक्चर शुड बी नोन टू यू। ओके ओके, ओ एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको मैं कर दूं कि भाई आज की दुनिया में क्वांटम में क्या हो रहा है। ये देखो, ये एक प्रोफेसर है धनंजय डे, ये IIIT लखनऊ में है, तो कंपाइल करते हैं साइबर सिक्योरिटी से कि क्या क्या लेटेस्ट दुनिया में हैपनिंग हुई है, इनके एक न्यूज़लेटर बनाते हैं। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में देखो क्या इस सिक्योरिटी में कहीं क्वांटम है, मैं ये सब दिखाना चाहता हूँ। नवंबर की बात है, एडिशन क्वांटम सिनर्जी आ रहा है। NATO eyes quantum resistance encryption in 5G drill। 5G टेक्नोलॉजी में क्वांटम रेजिस्टेंस की बात करिए इम्प्लीमेंट करने की, कि अगर किसी के पास क्वांटम आ गया, क्वांटम अटैक कर दें तो उसको किस तरह से अपना रोका जाए। क्वांटम कंप्यूटर स्टार्टअप फर्स्ट टू ब्रेक 100 क्यूबिट माइलस्टोन, यानी अब तक 60-70 का गूगल ने भी किया था, ये पहली बार किसी ने क्लेम किया कि 100 बिट का हमने बना लिया है क्वांटम कंप्यूटर, या कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर पोस्ट क्वांटम वर्ल्ड एक्सप्रेसिव। इसमें क्वांटम से रिलेटेड भी देखो कि लेटेस्ट हैपनिंग्स हो रही हैं जो कि मेन मीडिया में आने में टाइम लगेगा। देखो नेटो का ही न्यूज़ क्या है, कहाँ से, बस न्यूज़ का कलेक्शन है कि क्वांटम में कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आई विल शेयर दिस थिंग्स विथ यू, और आप एक बार देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। US is preparing for post-quantum world. Express VPN launches post-quantum protection. जो VPN है, VPN नेटवर्क जो सिक्योर्ड है कि आप अपने कैंपस का कनेक्शंस किसी को देते हैं थ्रू टनलिंग, वो सिक्योरली कनेक्ट हो जाए, तो इसको हैक ना करें। वो भी देख रहा है कि किस तरह के अपने कम्युनिकेशंस को मैं सिक्योर करूँ कि मेरा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हैक ना हो। हर कोई जो जहाँ है तैयारी कर रहा है इस आने वाले तूफान के लिए, तो या किसी के पास भी ये चीज़ आ गया, हाउ टू गेट सीरियस अबाउट। तो आर्टिकल्स हैं, बड़े अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, सो थ्रू दिस टॉक माय पर्पस वाज, बड़ा चैलेंजिंग था मुझे टॉक बनाना कि ऑडियंस को मैं नहीं जानता हूँ, अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम ला करके यहाँ पे डिस्कस कर लूँ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी भी मुझे लगा कि क्वांटम वर्ड्स अभी सुने हैं, बट उस टेक्नोलॉजी का जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो एक अलग टेक्नोलॉजी क्यों है, अगर यही बताएं तो एक अच्छी चीज़ होगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को बताया कि किस चीज़ पे ये बना है, क्यों ये डिफरेंट है, उसके बारे में उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे मैंने कहा कि इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस और क्यों क्यों हो सकता है, और उसके बाद आज की स्थिति क्वांटम कंप्यूटर्स में क्या है। ठीक है, कहाँ पे हैं, कुछ ही काम कर रहे हैं, अभी भी टाइम है in order to get a full-fledged quantum computer, and you can keep on watch by these newsletters and subscribing them. What is it? But yes, it is going to be there. These days technologies move very fast. 50 साल या 30 साल नहीं लगेंगे. Very soon you will have it, but not in the public domain. But yes, it will be there. Okay, and maybe you would be getting the access to it through cloud again.
इंडिविजुअल आदमी तो खरीद ही नहीं सकता, मेंटेन ही नहीं कर सकता, कहाँ से आप घर में टेम्परेचर बनाएंगे और उतना स्पेस देंगे। तो क्वांटम कंप्यूटर इन कंप्यूटर्स की तरह आपके पास नहीं आएगा, कहीं एक जगह पे होगा, आपको एक्सेस मिल जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेस आपको मिले, एंड यू कैन रन योर एप्लीकेशंस और कम्प्यूटेशंस ऑन दिस। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर बीइंग अ पैशनफुल लिसनर।